So we had to start from like this page. This is page number 50. So the Vajrayana sect. अब देखो Vajrayana क्या होता है. Let's change the color for a change. We'll go with the yellow color. So the Vajrayana sect of Buddhism. What do you mean by the Vajrayana sect of Buddhism? So it was popular during the medieval times. That's like way later on. If we look at it from the point of time when Buddhism actually started, then medieval times actually are quite late. So that's when the Vajrayana sect of Buddhism got prominence, and this was the result of decline of the mainstream Buddhism in pre-medieval times, as by the time Buddha began to be considered as an incarnation of Vishnu under the rising trend of Vaishnavism. The main reason behind its spread was simplicity, Dalit appeal, missionary concept of religion, and regional language. Although Buddhism accepted the caste system up to some extent, but they challenged the social rank of Brahmins. Also, certain castes were labeled as low. So Buddhism and Jainism believed that soul is mortal with transmigration. So this is a very important fact, that soul is mortal, with also that transmigration of soul is true, and karma is also there, and rebirth is also there. So soul is immortal as per Hinduism, but if we talk of soul in terms of Buddhism, then it is mortal. Also, that Buddhism also believes in rebirth. So one keeps taking the rebirth until some scores are settled. So these are the philosophies of Buddhism. I'll tell that once again. During the medieval times, or even with the pre-medieval times, the onset of pre-medieval times, the prominence of mainstream Buddhism declined, and that was because of the rising trend of Vaishnavism in that period of time. That is pre-medieval time. The main reason behind the spread of Vaishnavism was that there were certain values systems or values in the Vaishnavism cult which actually appealed people. So Vaishnavism actually was a little more simple to understand to masses, and it had a Dalit appeal. It had a missionary concept of religion, and it also was sort of not curtailed by the language that the people used to speak. So Vaishnavism could flourish in the regional languages as well. Although Buddhism accepted the caste system up to some extent. So that's another very striking or strange statement or truth, that Buddhism did accept the caste system up to some extent, but they challenged the social ranks of Brahmins. So this is something new that I have observed here, that Buddhism to an extent accepted the caste hierarchy and the caste divisions, but they did not accept the social rank of Brahmins. Also, certain castes were labeled as low as per Buddhism as well. Now, Buddhism and Jainism believed that soul is mortal. So even the soul is mortal, but as per Hinduism, soul is immortal. तो हिंदुइज्म क्या बोलता है कि सोल इमॉर्टल है, लेकिन बुद्धिज्म ये बोलता है कि सोल मॉर्टल है. हालांकि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज अ वैलिड एंड true concept according to Buddhism, and also that there is karma and there is rebirth. ठीक है. So these are some concepts according to Buddhism as well as Jainism. Now there are 4 noble truths in Buddhism. That is, there is suffering. That is the first truth. Then there is a cause of suffering, and there is cessation of suffering, and there is a path leading to cessation of suffering. So if you understand these 4 noble truths, you can ease out your life. Okay, this is applicable even in our lives. So there is suffering, and there is no denying the fact that you can escape suffering. There is suffering and you'll face it. So there is suffering. First of all, you have to admit this, that there is suffering, and you also have to admit that there is a cause of suffering. And then once you have admitted these 2 noble truths, then you can look towards the solution oriented viewpoint. There is a cessation of suffering. There comes a point when the suffering stops, and it doesn't stop on its own because there is a path leading to cessation of suffering. So these are the 4 noble truths of Buddhism. There is suffering, there is a cause of suffering, then there is cessation of suffering, and there is a path leading to cessation of suffering. Okay, these are the 4 noble truths in the Buddhism. The prominence of Nalanda started declining during the Pala rulers of Bengal, as they started giving patronage to Vikramshila University. So नालंदा का प्रोमिनेंस थोड़ा गिरने लगा, डगमगाने लगा पाला रूलर्स ऑफ बंगाल के आते आते.
हालांकि उसके बाद फिर तो जब बख्तियार खिलजी आए थे तो विक्रमशिला और वो सब तो तबाह कर दिए थे, बट उससे पहले ही पाला रूलर्स के आते आते बंगाल में ये नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोमिनेंस थोड़ा कम हो गया था बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रोमिनेंस ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को काफ़ी ग्रांट्स और पैट्रोनाज मिलता था. नाउ ऑल्सो गोपाला बिल्ट द उदांतपुर यूनिवर्सिटी इन बिहार. Similarly, Vallabhi University in Gujarat was made by Maitrak dynasty. So I know that Gopal built Udantpuri University in Bihar. I did not know that Vallabhi University is in Gujarat, which was made by the Maitraka dynasty. चलो एक फैक्ट और पता चल गया. Then Mahayanas delay their salvation to help sentient beings on their path to do it. तो ये हरकत कौन करता है? ये महायान्स करते हैं. They delay their own salvation to help the sentient beings achieve salvation. Now Karle Chaitya, that is in Pune, Maharashtra, and it is a proof of Heenyan phase of Buddhism. So Karle Chaitya is किस चीज़ का प्रमाण है? Heenyan phase of Buddhism का है. Then Nagarjuna was an eminent scholar of Kanishk's court. He wrote माध्यमिक दर्शन. नागार्जुन किस में था? कनिष्क के कोर्ट में था नागार्जुन, और इसने माध्यमिक दर्शन लिखा था. And he also discussed the theory of relativity. Hence he is also called as the Einstein of India. सो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, माध्यमिक दर्शन और आइंस्टीन ऑफ इंडिया, ये सब किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? नागार्जुन, हु वाज वर्किंग इन द कनिष्क कोर्ट. ही ऑल्सो ट्रैवल टू चाइना टू प्रोपगेट बुद्धिज्म. ही ऑल्सो मेड शून्यता डॉक्ट्राइन ऑफ और वॉइड, डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड. तो शून्यता या डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड ये कौन लेके आया था? दिस वाज ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड बाय नागार्जुन, हु वर्कड इन द कनिष्क कोर्ट. ठीक है. देन मूविंग ऑन. Both Jainism as well as Buddhism believed in the denial of rituals and Vedas and no harm to animals. While Jainism propounded penance till self-mortification, Buddhism suggested moderation. देखो बुद्धिज़्म एक्सट्रीमिज्म में बिलीव नहीं करता था. बुद्धिज़्म सिर्फ मध्य मार्ग की तरफ फोकस करता था, जबकि जैनिज़्म थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था इन द सेंस दैट यू हैव टू प्रैक्टिस पेनांस टिल यू मोटिफाई योर सेल्फ. सो दैट वाज द फिलोसफी इन जैनिज़्म. लेकिन बुद्धिज़्म में सिर्फ मॉडरेशन प्रैक्टिस करने की बात कही गई थी. नाउ कॉमन क्या है बोथ जैनिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म में कि that they both rejected the Vedas, they both rejected they both denied rituals as well as Vedas, and they also advocated the fact that one should not harm animals. So animal slaughter को भी वो prohibit करते थे दोनों. Now सर्वस्तिवादीन ये क्या है? सर्वस्तिवादीन asserted that all of conditioned existence without exception is transient, evanescent and inconstant. फिर से बता रहे हैं, सर्वस्तिवादीन एक पहली बात तो ये सर्वस्तिवादीन मेरे ख्याल से बुद्धिज़्म का सब सेक्शन है. एंड इट्स स्टेटेड दैट ऑल ऑफ द कंडीशनड एग्जिस्टेंस इज ट्रांजिएंट, इवैनेसेंट एंड इनकॉन्स्टेंट. दिस इम्परमानेंस इज द सोर्स ऑफ ऑल दुख और मिजरी. ऑन द अदर हैंड, सर्वस्तिवादीन ऑल्सो प्रोपाउंडेड दैट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल एग्जिस्ट एट वंस फॉर एवर, दो इन लेटेंट फॉर्म. अमंग अदर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म वर सौतंत्रिका एंड समतिया. सो ये कुछ दो ऑल सब सेक्शंस विद इन द बुद्धिज़्म थे. सर्वस्तिवादीन भी एक सब सेक्शन था, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हमने सर्वस्तिवादीन के बारे में पढ़ा, जो ये बोलता है कि ऑल कंडीशनड एग्जिस्टेंस इज़ इनकॉन्स्टेंट, एवैनेसेंट एंड ट्रांजिएंट, एंड दिस इम्परमानेंस ऑफ ऑल द कंडीशनड एग्जिस्टेंस इज़ व्हाट कॉजेज दुख. और सर्वस्तिवादीन ने एक चीज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि जो पास्ट है और प्रेजेंट है वो फ्यूचर है. एवरीथिंग इज एग्जिस्ट्स एज अ सिंगुलर एंटिटी एट वंस, लेकिन लेटेंट फॉर्म में. मतलब अभी ही कुछ है, जो फ्यूचर में होने वाला है वो अभी ही है. ठीक है. और जो पास्ट में हो चुका है वो भी है हमारे ही अंदर. तो बट वी कैन ओनली फील द प्रेजेंट बिकॉज द अदर टू थिंग्स आर इन द लेटेंट फॉर्म. सो दैट इज़ ऑल्सो स्टेटेड बाय सर्वस्तिवादीन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है. तो ये हो गया. नागार्जुन जो कनिष्क के कोर्ट में थे, उन्होंने शून्यता डॉक्ट्राइन भी दिया था. ठीक है. उनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहते हैं बिकॉज ही डिस्कस्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. हाँ. और कार्ले चैत्य कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में है, विच वॉज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म. ओके, देन मूविंग ऑन. हीनयान के बारे में बात करते हैं. सो बुद्धा वर्शिप एज अ नॉर्मल मैन. और महायान में बुद्धा को बिल्कुल ही ग्लोरीफाई कर दिया है, आइडल वर्शिप करके गॉड के स्टेटस दे दिया है. और बेसिकली महायान का ज़्यादा प्रोमिनेंस कब हुआ था? कनिष्क महायान को ज़्यादा बढ़ावा दे दिए थे. दैट इज़ ओवर आर्किंग
glorified status to the Buddha, revered as a god. So that happened during the Mahayana phase of Buddhism, which occurred mostly during the Kanishk's reign. Thus Buddha became the first god whose idols started to be worshipped. The standing Buddha statue was built during the Kushan period, while the Sarnath Bhumi Sparsh Mudra statue belongs to the Guptas. अब देखो एक ये स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू है, मेरे ख्याल से लौरिया नंदनगढ़ में है एक. I'll just check. Standing Buddha statue, where is that? Standing Buddha statue, tallest 80 feet statue, is located in a Thai temple in Sarnath. This statue, made of sandstone, was inaugurated by the Prime Minister of Thailand in the year 2011. So एक तो सारनाथ, अब ये थाईलैंड में कैसे है भाई, इंडिया का बताओ ना यार. तो देखो देर आर सेवरल स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचूज़ इन इंडिया. एक तो थाई बुद्धा विहार वाराणसी में, देन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, बोध गया. तो ये बोध गया में है. द 80-foot great Buddha statue in Bodh Gaya is made of sandstone and red granite. It is one of the largest statues in India and was constructed by the 14th Dalai Lama in 1989. तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये तो दलाई लामा ने. Anyways, just get rid of that. The standing Buddha statue that was built during the Kushans, while the Sarnath Bhumi Sparsh Mudra statue that was built during the Guptas. Now Rajgir is famous for Hindus, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स एज वेल. ठीक है, तो राजगीर सभी के लिए फेमस है. ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए भी फेमस है. यू कैन डोंट मिस दैट फैक्ट. नाउ भूमि स्पर्श में क्या है कि मेथड प्लस विजडम, ओवरकमिंग मारा टेम्पटेशंस. इट डिनोट्स, मतलब उस भूमि स्पर्श का सिग्निफिकेंस हम बता रहे हैं. वो जो जिस पोजीशन में बैठे हैं उसमें यह दर्शाया जा रहा है कि टू ओवरकम द मारा और मायाज टेम्पटेशंस, टर्निंग एंगर इनटू विजडम. और अक्षोभया, ये भी एक मेरे ख्याल से मुद्रा है जिसमें ये दर्शाया गया है कि टू समन द अर्थ गॉडेस स्थावरा टू विटनेस हिज विजडम. नाउ प्लीज़ हैव अ लुक एट दीज टू मुद्राज ऑफ बुद्धा. एक ये है अक्षोभया मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा. सो पहले हम अक्षोभया मुद्रा देखते हैं. अक्षोभया मुद्रा is an earth touching gesture made by the Buddha Akshobhaya, one of the 5 cosmic Buddhas. ठीक है, earth touching gesture. अच्छा, उसको अक्षोभया, भूमि स्पर्श इज इक्वल टू अक्षोभया. मुझे लग रहा था दो डिफरेंट ये जेस्चर्स हैं. सो भूमि स्पर्श मुद्रा को ही अक्षोभया मुद्रा भी बोलते हैं. और हाँ, सो इसमें वन ऑफ द 5 विजडम बुद्धास, अ प्रोडक्ट ऑफ द आदि बुद्ध. ओके, नाउ अक्षोभया बुद्धा या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा, ये एक ही चीज़ है. ठीक है, और ये क्या दर्शाता है बेसिकली, टू कन्वर्ट एंगर इनटू विजडम एंड टू ओवरकम द मायाज टेम्पटेशन. और इसमें बेसिकली अर्थ को छुआ जाने से ये दर्शाया जा रहा है टू समन द अर्थ गॉडेस स्थावरा, जिसका नाम स्थावरा है, टू विटनेस हिज विजडम, बुद्धाज विजडम. उसके बाद ये वरद क्या है, ये भी मेरे ख्याल से एक मुद्रा है, वरद. सो वरद इज ऑल्सो मुद्रा. एंड मेरे ख्याल से रत्ना संभव, थर्ड बुद्धा जो हैं, 5 है ना टोटल, तो उसमें से रत्ना संभव वाला है, उसको ये दर्शा रहे हैं. और हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट वरद मुद्रा बेसिकली कंपैशंस एज वेल एज पेशेंस को डिनोट कर रहा है. ध्यान मुद्रा, ये ट्राइंगल फॉर्म्ड विथ फिंगर्स रिप्रेजेंटिंग 3 ज्वेल्स, लॉ, बुद्धा एंड संगा. ठीक है, तो लॉ, बुद्धा एज वेल एज संग, ये 3 चीज़ हमको ध्यान मुद्रा में देखने को मिल रही है. अभय मुद्रा बेसिकली फियरलेसनेस को डिनोट करता है, और दैट अमोघ सिद्धि. ठीक है, और वज्र मुद्रा ये थंडर बोल्ट को डिनोट कर रहा है, एंड 5 एलिमेंट्स एयर वाटर अर्थ फायर मेटल. ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स को डिनोट करता है ये, और थंडर बोल्ट को करता है वज्र मुद्रा. वितर्क मुद्रा ये डिस्कशन मोड है. ज्ञान मुद्रा टीचिंग लुक विथ इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग. और करण मुद्रा रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स एंड सिकनेस. तो करण मुद्रा याद रखो, आसान है. ज्ञान मुद्रा मतलब पढ़ाने वाला मुद्रा है. करण मुद्रा मतलब रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स एज वेल एज सिकनेसेस. वितर्क मुद्रा ये डिस्कशन है, तर्क वितर्क. ठीक है, और वज्र मुद्रा ये थंडर बोल्ट है, और 5 एलिमेंट्स, 5 पंचतत्व वाला किस में दिखाया गया है, वज्र मुद्रा में. तो वज्र मुद्रा बेसिकली पंचतत्व है और फियरलेसनेस है. नो, पंचतत्व है और थंडर बोल्ट है. अभय मुद्रा इज फियरलेसनेस, और अभय मुद्रा बेसिकली अमोघ सिद्धि को दर्शाया गया है, फियरलेसनेस. ठीक है, अमोघ सिद्धि. देन ध्यान मुद्रा ये अमिताभ को दर्शाया गया है, ध्यान.
ठीक है। तो देखो फिर से बता रहे हैं, अभय मुद्रा में फियरलेसनेस है और वो अमोघ सिद्धि को दर्शाया गया है, और ध्यान मुद्रा अमिताभ को दर्शाया गया है, और इसमें बेसिकली 3 फिंगर्स से ट्रायंगल बनाते हैं, और 3 वर्टिसेस क्या डिनोट करते हैं, लॉ, बुद्धा एंड संघ। फिर वरद, वरद बुद्धा ये रत्न संभव वाले वर्जन को डिनोट कर रहा है, एंड इट डिनोट्स कंपैशन एंड पेशेंस। फिर भूमि स्पर्श अक्षोभया को डिनोट कर रहा है, और ये ओवरकमिंग माराज टेम्पटेशन एंड समनिंग द अर्थ गॉडेस थावरा टू विटनेस बुद्धाज विजडम, ये डिनोट कर रहा है। तो ये कुछ फेमस मुद्राज हैं। देन बोधिसत्वा कंसेप्ट इज सेंट्रल टू महायान। देन अवलोकितेश्वर इज ऑल्सो नोन एज पदम पानी और लोटस बियरर, ये तो हमको पता है, ठीक है। बुद्धाज बर्थ इज मार्क्ड बाय लोटस, ठीक है, बुद्धाज बर्थ इज मार्क्ड बाय लोटस। देन लाइट ऑफ एशिया, ये एक किताब लिखी थी एडविन आर्नोल्ड ने। एडविन आर्नोल्ड रोट लाइट ऑफ एशिया which is based on Lalit Vistar. Now Lalit Vistar originally is a book where Buddha is conferred the title Lalit Vistar. According to Buddha, world is transient and impermanent, and that all composite things are bound to decay. The giant 82-fold Buddha statue in Bodh Gaya was built by Japanese. The word stupa has been first used in the Rig Veda. Okay, so this is very important fact. The word stupa has been first used in Rig Veda. और जाइंट 82 फीट टॉल बुद्धा स्टैचू जो है वो जापानीज़ ने बनवाया था बोध गया में। मेरे ख्याल से एक स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू कुशांत ने बनवाया था, और ये एक 82 फीट हाई वाला है, ये जापानीज़ ने बनवाया था। द स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू वाज बिल्ड ड्यूरिंग कुशांत, देखो ये लिखा हुआ है। और ये जाइंट 82 फीट टॉल बुद्धा स्टैचू इन बोध गया दैट वाज बिल्ड बाय जापानीज़। देन अशोकरम मोनास्ट्री ये पाटलिपुत्र में है, और वर्ल्ड पीस पगोडा ये राजगीर में है, ठीक है। विश्व शांति स्तूपा, विश्व शांति स्तूपा या वर्ल्ड पीस पगोडा, तो वर्ल्ड पीस पगोडा या विश्व शांति स्तूप विच इज़ लोकेटेड इन राजगीर, एंड अशोकरम मोनास्ट्री दैट इज़ इन पाटलिपुत्र। अब ये सूत पिता का ये मेरे ख्याल से ये बुद्धिज़्म का टेक्स्ट है, ठीक है। सो सूत पिताक में क्या है कि 5 निकाय होते हैं, और ये उपाली द्वारा लिखा गया है। द सूत पिताका, एंटायर सूत पिताका इज कंपाइल्ड बाय अ राइटर नेम्ड उपाली हु मस्ट हैव बीन अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। तो सूत पिताक में 5 निकाय होते हैं। पहला होता है दीघ निकाय, फिर मध्यमा निकाय, फिर संयुत निकाय, फिर अंगुतार निकाय, और फिर खुडक्का निकाय। नाउ खुडक्का निकाय कंटेन्स जातक टेल्स, वेयर एज मध्यमा निकाय contains conversation between Kachhana and King Avantiputra. I don't know who is Kachhana and who is King Avantiputra. So the conversations between Kachhana and King Avantiputra is written in Majjhima Nikaya. हालांकि अंगुतार निकाय में सारे 16 महाजनपद के बारे में भी लिखा हुआ है। Similarly, Vinay Pitak, this was compiled by a writer named Anand, who was a disciple of Buddha, and Vinay Pitak also contains 5 books, ठीक है, जैसे कि प्रराजिका एंड पछितिया, महावग्गा एंड चुलावग्गा, और परिवार। तो ये 5 किताब मैं फिर से बता रहा हूँ। परिवार है एक, चुल्लावग्गा और महावग्गा, चुल्लावग्गा और महावग्गा, परिवार, और पराजिका पचितिया, ये 5 किताब विनय पिताक में हैं जो कि आनंद ने लिखे थे, ठीक है। और सूत पिताक उपाली लिखे थे, उसमें क्या था, दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुत निकाय, अंगुतार निकाय और खुडक्का निकाय। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड कछाना दैट इज गिवन इन मध्यमा निकाय। देन व्हाट इज दिस, फाइनली वी हैव अभिधाम पिताक। अभिधाम पिताक में भी कुछ बुक्स हैं, जैसे यमक, पठान, कथावट्टू, पुगलापंथी, धातु कथा, विभंग एंड धमसंगिनी, ठीक है। इसमें विभंग, धमसंगिनी, धातु कथा एंड पगलापंथी, कथावट्टू, यमक, ठीक है, ये कुछ याद कर लेना चाहिए। नाउ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल आनंद, हु वाज द राइटर ऑफ विनय पिताक, बुद्धा अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन इन द संघ इन वैशाली, और पहली सच वुमेन टू एंटर द संघ वाज गौतमी, ठीक है। तो ये आनंद के रिक्वेस्ट पे बुद्धा ने अलाउ किया था, एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम वैशाली, और पहली सच वुमेन टू एंटर द संघ वाज गौतमी। नाउ अब 8 फोल्ड पाथ से हम अगले लेक्चर में देखेंगे, होपफुली ये कल पूरा हो जाएगा।